अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 19 सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 35 था 44 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का इशारा हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब वजअलना माहू अखाहू हारून वज़ीरा। फ़कुलना इज़हबा इलल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फदम्मरनाहुम तदमीरा। वक़ौम नूहिल लम्मा कज़्ज़बुर वक़ौम नूहिल लम्मा कज़्ज़बुर रसूला अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया वअतदना लिज़्ज़ालिमीना अज़ाबन अलीमा वआदा वसमूद वअस्हाबर रस्सी वक़ुरूनम बैन ज़ालिका वक़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा। वकुल्लन दरबना लहुल अमसाल वकुल्लन तब्बरना तत्बीरा। वलक़द अतौ अलल क़र्यतिल्लती उमतिरत मतरस्सौ अफलम यकूनू यरौनहा बल कानू ला यरजून नुशूरा। वइज़ा रअौक यत्तखिज़ूनक इल्ला हुज़ुवा हाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। इन कादा लयुदिल्लुना अन आलिहतिना लौला अन सबरना अलैहा वसौफ यअलमूना हीना यरौनल अज़ाब मन अदल्लु सबीला। अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना औ याकिलून इनहुम इल्ला कल अनआमी
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کیا. تو ہم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیتیں جھٹلائیں. پھر ہم نے انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا. اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا اور انہی لوگوں کے لیے نشانی کر دیا. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد اور سمود اور کوئیں والوں کو ان کے بیچ میں بہت سی سنگتیں یعنی کہ قومیں اور ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا. اور ضرور یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر جس پر برا برساؤ برسا تھا. تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے بلکہ انہیں جی اٹھنے کی امید تھی ہی نہیں. اور جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا. کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دیں اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے. اور اب جاننا چاہتے ہیں جس دن عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا. کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ. اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے. مزید ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. تفسیر. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی روز قیامت 3 طریقے پر اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ سواریوں پر، ایک گروہ پیادہ پا اور ایک جماعت منہ کے بل گھسیٹتی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس نے پاؤں پر چلایا وہی منہ کے بل چلائے گا. یعنی قوم فرعون کی طرف. چنانچہ وہ دونوں حضرات ان کی طرف گئے اور انہیں خدا کا خوف دلایا اور اپنی رسالت کی تبلیغ کی. لیکن ان بدبختوں نے ان حضرات کو جھٹلایا بھی ہلاک کر دیا. یعنی حضرت نوح، حضرت ادریس کو اور حضرت شیش کو. یا یہ بات ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے. تو جب انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا تو سب رسولوں کو جھٹلایا کہ بعد والوں کے لیے عبرتوں. اور عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان دونوں قوموں کو بھی ہلاک کیا. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو بت پرستی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے سرکشی کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کو ایذا دی. ان لوگوں کے مکان کنویں کے گرد تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا اور یہ تمام قوم اپنے مکانوں کے اس کنویں کے ساتھ زمین میں دھس گئی. اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں. یعنی قوم عاد و سمود اور کنویں والوں کے درمیان میں بہت سی امتیں ہیں جن کو انبیاء
जिनको अंबिया की तकजीब करने के सबब से अल्लाह ताला ने हलाक किया और हुज्जतें कायम की और उनमें से किसी को बगैर अनजार हलाक न किया। यानी कुफार मक्का अपनी तजारतों में शाम के सफ़र करते हुए बार बार उस बस्ती से मुराद सदूम है जो कौम लूत की 5 बस्तियों में सबसे बड़ी थी। उन बस्तियों में एक सबसे छोटी बस्ती के लोग तो उस खबीस बदकारी के आमिल न थे जिसमें बाकी 4 बस्तियों के लोग मुब्तला थे। इसलिए उन्होंने निजात पाई और वो 4 बस्तियां अपनी बदअमली के बायस आसमान से पत्थर बरसाकर हलाक कर दी गई कि इबरत पकड़ते और ईमान लाते, यानी मरने के बाद जिंदा किए जाने के कायल न थे कि उन्हें आखिरत के सवाब व अजाब की परवाह होती। और कहते हैं इससे मालूम हुआ कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आपने इज़हारे मौजज़ात के कुफार पर इतना असर किया था और दीन हक को इस कदर वाज़े कर दिया था कि खुदा के खुद कुफार को इकरार है कि अगर वो अपनी हट पर जमे न रहते तो करीब था कि बुत परस्ती छोड़ दें और दीन इस्लाम इख्तियार करें। यानी दीन इस्लाम की हक्कानियत उन पर खूब वाज़े हो चुकी थी और शकूक व शुबात मिटा डाले गए थे, लेकिन वो अपनी हट और जिद की वजह से महरूम रहे। आखिरत में ये उसका जवाब है कि कुफार ने यह कहा था कि करीब है कि ये हमें हमारे खुदाओं से बहका दें। यहाँ बताया गया कि बहके हुए तुम खुद हो और आखिरत में ये तुमको खुद मालूम हो जाएगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहकाने की निस्बत महज भेजा है और अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूजने लगा, उसी का मती हो गया। वो हदायत किस तरह कबूल करेगा? मरवी है कि ज़माना जाहिलियत के लोग एक पत्थर को पूजते थे और जब कहीं उन्हें कोई दूसरा पत्थर उससे अच्छा नजर आता तो पहले को फेंक देते और दूसरे को पूजने लगते कि ख्वाहिश परस्ती से रोक दो। यानी वो अपनी शिद्दत अनाद से ना आपकी बात सुनते हैं, ना दलाइल व बराहीन को समझते हैं, बहरे और नासमझ बने हुए हैं क्योंकि चौपाई भी अपने रब की तस्बीह करते हैं और जो उन्हें खाने को दे उसके मुती रहते हैं और एहसान करने वाले को पहचानते हैं और देने वाले से घबराते हैं, नाफे की तलब करते हैं और मुजर से बचते हैं, चरागाहों की राहें जानते हैं। ये कुफार उनसे भी बदतर हैं कि ना रब की इताअत करते हैं, ना उसके एहसान को पहचानते हैं, ना शैतान जैसे दुश्मन की ज़र रसानी को समझते हैं, ना सवाब जैसी अजीमुल मनफ़ियत चीज़ के तालिब हैं, ना अजाब जैसे सख्त मुज़िर मोहलिका से बचते हैं कि उसकी सनत व कुदरत कैसी अजीब है। सुबह सादिक के तुलू के बाद से आफ्ताब के तुलू तक कि उस वक़्त तमाम ज़मीन में साया ही साया होता है, ना धूप है, ना अंधेरा है कि आफ्ताब के तुलू से भी ज़ाइल ना होता कि तुलू के बाद आफ्ताब जितना ऊँचा होता गया, साया सिमटता गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल इसका इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये ज़रूर इस्तदा करूँगा ख़त्म नबूवत के सदके कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस काम के लिए कबूल किया है, तो आपसे ये इस्तदा है कि आप ज़रूर इस वीडियो को खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलक़ीन करें, अपने दोस्त, अज़ीज़, अक़रबा को इसकी ज़रूर तरग़ीब दें और जहाँ तक आप इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए आप ये शेयर किया करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में हर बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।